तमाम फ़ख्र गयूरों को मेरा सलाम। दोस्तों, आज के इस टॉपिक पर हमारी कोशिश है कि हम अपने देखने और चाहने वालों को वो इन्फॉर्मेशन दें जो शायद एक तालिब इल्म को जानने के लिए सालों लग जाते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत नज़र आए तो ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप मुफीद होते रहें। दोस्तों, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक आप बहुत कुछ जानते हैं। शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो उनके बारे में न जानता हो। आज की इस वीडियो में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का शिया सुन्नी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कुछ ऐसी मालूमात आपसे शेयर करेंगे जो शायद मिंबर पर बैठा कोई भी इंसान बयान करने से आजिज़ होता है। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि या अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत में से भी इमाम बना। इस बात की गवाही खुद अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में दी। सूरह बकरा की आयत नंबर 124 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو ان میں پورے اترے۔ خدا نے کہا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی۔ خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اس دعا سے ہی امامت کے دلائل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد ان کی ذریت میں اللہ کی طرف سے لوگوں کا انتخاب ہوا جو رسول، نبی اور امام بنے۔ آسان الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو اللہ کے منتخب مہدی۔ ناظرین، یہ عقیدہ کہ ہمارا آخری لیڈر آئے گا جو سب کے اوپر حکمرانی کرے گا، وہ ہمیں ظلم کے نظام سے آزادی دلائے گا اور دنیا سے ظلم ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، صرف مسلمانوں کا نہیں، یہ تمام اہل کتاب کے مذاہب کے اندر بھی موجود ہے۔ یہودی، عیسائی، مسلمان اور ان کے علاوہ دوسرے مذاہب کی کتابوں میں بھی یہ عقیدہ دیکھا گیا ہے اور اکثر مذاہب اس آخری لیڈر کے منتظر ہیں، مگر ہم آج صرف اپنے دین اسلام کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کے مرکز و محور ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تصور اور حقیقت کی عظمت رسول اللہ کی نسبت سے ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اہل بیت سے ہوں گے، وہ حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد پاک میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، کچھ روایت میں ہے کہ احمد ہوگا، اور وہ قیامت واقع ہونے سے پہلے حکمرانی کریں گے اور روئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ظلم کا خاتمہ کر دیں گے، اور اس بات پر شیعہ سنی دونوں متفق ہیں۔ اس کے بعد جتنی بھی باتیں ہیں ان میں شیعہ سنی کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ سنیوں کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پر مبنی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو قیامت سے پہلے پورا ہو کر رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، یہ پیشن گوئی سنی مسلمانوں کے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام ان کے بنیادی عقیدہ امامت میں شامل ہے۔ امام مہدی علیہ السلام سلسلہ عصمت محمدیہ کی 14ویں اور سلسلہ امامت علویہ کی 12ویں کڑی ہیں۔ جو سلسلہ امامت رسول اللہ کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے وہ امام مہدی علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے۔ اہل تشیع امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی، امام زمانہ اور حجت بن الحسن کے نام سے مشہور ہیں۔ شیعہ اثنا شریعہ کے 12ویں امام ہیں۔ شیعہ کتابوں کے مطابق آپ کی ولادت خفیہ رکھی گئی تھی اور امام حسن عسکری کے کچھ خاص اصحاب کے سوا کسی کو آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ ہم ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کام صرف آپ تک پوائنٹ آف ویو پہنچانا ہے۔ یقیناً آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ امام کا کام ہی لوگوں کی رہبری اور رہنمائی ہوتی ہے، پھر دنیا کا عظیم خدا کا منتخب طاقتور لیڈر جو پوری کفار سے جنگ کرے گا، ان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ ان کو خفیہ رکھا گیا اور بعد میں گیپ میں جانا پڑا؟ ان سوالات کے جواب ہم آپ کو کسی اور نشست میں دیں گے۔ امامیہ کے عقیدے کے مطابق امام مہدی ہی آخری زمان کے نجات دہندہ جو طویل عمر کے مالک ہوں گے اور اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ غیبت میں گزاریں گے۔ آپ علیہ السلام آخرکار اللہ کے ارادے سے ظہور کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کریں گے۔ شک و شبہات کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے، یہ صرف آپ کے دل میں ہی پیدا نہیں ہوا۔ بعض شیعہ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد مختصر عرصے میں شک و تردید کا شکار ہوئے تھے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام کی خطوط جو عام طور پر شیعہ نے اہل بیت کے نام لکھی جاتی تھیں اور خاص نائبین کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی تھیں، مکتب تشیع کے استحکام کا سبب قرار پائیں۔ امام حسن عسکری علیہ
अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद ग़ैबत सुगरा के दौरान नवाब अरबा के वसीले से आपका राब्ता अपने मानने वालों के साथ कायम था, लेकिन सन 329 हिजरी में जब ग़ैबत कुबरा का आगाज़ हुआ तो आप अलैहिस्सलाम के साथ बरह रास्त राब्ता भी मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, नवाब अरबा में सिर्फ 4 लोग ही थे जो असहाब इमाम महदी अलैहिस्सलाम थे, जिनके नाम उस्मान बिन सईद, मोहम्मद बिन उस्मान, हुसैन बिन रूह और अली बिन मोहम्मद समरी थे। उन 4 लोगों के अलावा कोई भी शख्स इमाम महदी से कांटेक्ट में न था, उनको किसी ने देखा नहीं था। यही वजह है कि उस वक्त के बाद शिया इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद परेशान हुए थे और उन 4 असहाब के वकला हुआ करते थे जो पूरा निज़ाम देखते थे। शक की फहरिस्त में एक नाम उस वक्त के खास वकला का आता है, मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन महजियार, जिनका वालिद खुद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के वकला में से था, को भी 12वें इमाम के बारे में बाज़ शकूक व शुबहात थी जो इमाम ज़माना की तरफ से बाज़ खतूत की दरियाफ्त होने के बाद बरतरफ हुआ। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि जब किसी अपने करीबी शख्स को भी ये कन्फर्म नहीं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम मौजूद है कि नहीं तो बेचारी आम पब्लिक क्या करे, और इमाम ने उनको यकीन दिलाने के बजाय बरतरफ क्यों किया? क्या सच में ही इमाम ही ने बरतरफ किया या फिर इमाम का नाम इस्तेमाल करके कोई खतूत लिख रहा था? यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि इमाम को अगर किसी ने देखा नहीं था तो लोगों की बैत का सिलसिला क्या रहा होगा, वो इमाम से किस तरह मुफीद होते होंगे और इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मंसूब खतूत दिखाकर कैसे लोगों को यकीन दिलाया जाता रहा। और उन 4 अशखास जो असहाब इमाम थे, उनकी वफ़ात के बाद ये खतूत का सिलसिला क्यों रुक गया? कहीं वो 4 असहाब तो खतूत लिखकर इमाम से मंसूब करके लोगों की दिलजोई तो नहीं कर रहे थे? एक तारीखी रवायत के मुताबिक नवाब खास अगरचे इमाम ज़माना के वजूद को साबित करने के दर पे होते थे, लेकिन उसके बावजूद शियों से दरख्वास्त करते थे कि वो इमाम की निशानी जानने की कोशिश ना करें, और ये काम इमाम की हिफाजत की खातिर था। आपके दिल में ये सवाल पैदा हुआ होगा कि इमाम तो रूहानी तौर पर गैब में थे, बशरी आंखें तो उनको देख नहीं सकती थी, तो उनको खतरा किससे था? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब नवाब अरबा लोगों के जवाब देने से लाचार होते थे तो बचने के लिए कह देते थे कि इमाम की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हम ये बयान नहीं कर सकते? और आपके इस तरह के सवाल हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और हम इनके जवाब यकीनन किसी और नशिस्त में आपको देंगे। शिया अहादीस में 12वें इमाम के लिए मोहम्मद, अहमद और अब्दुल्ला जैसे नाम नकल हुए हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम शिया ने अहले बैत के दरमियान महदी के नाम से पहचाने जाते हैं, जो आप अलैहिस्सलाम के अलकाब में से एक है। मुतअद्दिद अहादीस के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम नाम हैं। नाज़रीन, शिया मनाब हदीस में ज़्यादा अहादीस नकल हुई हैं जिनमें 12वें इमाम का नाम लेने से मना करते हुए उसे हराम करार दिया गया है। अगर आपके दिल में ये सवाल पैदा हो रहा है कि जिस इमाम की ज़िम्मे पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है, उस इमाम की जिंदगी की हिफाजत उम्मत के ऊपर आ गई, या फिर आखिर ये कैसा अकीदा इमामत है जिस पर ना सवाल करना है, ना नाम लेना है, ना बात करनी है, बस सिर्फ इमाम महदी अलैहिस्सलाम की निस्बत से जो खुदूद अरसाल हों उन पर बिन देखे सोचे समझे यकीन करना है, तो आपके ये सख्त सवालात बजा हैं, मगर जवाब के लिए इंतज़ार करें। नाज़रीन, ग़ैबत में इमाम से मुलाकात मुमकिन है या नहीं, इस पर बेहद इख्तलाफ है। अकाबरीन शिया में से एक जमात की राय है कि ग़ैबत कुबरा के ज़माने में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ रब्ता करने का इम्कान मौजूद नहीं है, और आप अलैहिस्सलाम के अपने इरशाद के मुताबिक दीदार के दावेदारों को झुटलाना चाहिए। मगर इमाम के अपने कौल के बाद भी कुछ लोगों का मानना है कि ग़ैब में मुलाकात मुमकिन है। असल में मसाइल तब पैदा होते हैं जब वाज़ेह अहकामात ना हो और एक आलिम अपनी राय का इजहार करे और वक्त के साथ उसकी राय तवातर से जारी हो जाए, फिर उस पर अकीदा बन जाए। मौजूदा सूरत हाल में हमारे यहाँ बेशुमार चीज़ें जो अब दीन का हिस्सा बन गई हैं ऐसे ही वजूद में आई हैं। नाज़रीन, तारीख में इमाम की विलादत से ग़ैबत तक के सफ़र की बेशुमार तफसीलें मिलती हैं, मगर वो इख्तलाफी हैं। एक तो तारीख में बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की हैसियत बहुत कमज़ोर है। जब जिसका दिल करे कोई बात अखज़ कर ले और जब जिसका दिल करे कोई बात रद्द कर दे। हमारे नाज़रीन से दरख्वास्त है कि तारीखी रिकॉर्ड्स पर ईमान की इमारत खड़ी करना और दूसरों के अकायद को बुरा भला कहना, कुफ्र के फतवे लगाना किसी भी एंगल से गलत है। हमें चाहिए कि ऐसे इशूज़ पर सिर्फ ये कहा जाए कि अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। शिया अक़ीदे के मुताबिक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हैं। अहले सुन्नत ने बाज़ हदीस के हवाले से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अब्दुल्ला ज़िक्र किया है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वालिद माजिदा के मुतअद्दिद नाम ज़िक्र हुए हैं, जैसे नरजिस, सोसन, सकील, सीकल, हदीसा, हकीमा, मलिका, रेहाना और खमद। लेकिन तारीख में नरजिस नाम तवातर से कैसे जारी हुआ इसका कोई तारीखी शवाहिद नहीं मिलता। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वालिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम
8 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी को 28 साल की उम्र में सामरा में शहीद हुए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वलादत की साल के बारे में इख्तिलाफ है। इमामिया अहले तशी के नज़दीक मशहूर है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वलादत 15 शोबान सन 255 हिजरी को हुई, लेकिन तारीख में और मुख्तलिफ कौल भी मौजूद हैं जिनके मुताबिक आपकी वलादत सन 254 हिजरी या 256 हिजरी में हुई है। मशहूर कौल के मुताबिक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल ज़ौजा अख्तियार नहीं की और आपकी नस्ल कनीज़ के ज़रिए आगे बढ़ी, जो कि हज़रत महदी अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी है। आपकी औलाद के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ ने 3 बेटे और 3 बेटियों का कहा है। उसी कौल से मिलता जुलता अहले तशी के नज़दीक मौजूद है। खसीबी ने इमाम महदी के अलावा इमाम हसन अस्करी की 2 बेटियों का नाम फातिमा और दलाला जिक्र किया है। उसके बरअक्स बाज़ अहले सुन्नत के उलमा जैसे इब्न जरीर तबरी, यहया बिन सऊद और इब्न हज़म का अकीदा है कि आपकी कोई औलाद ही नहीं थी। दोस्तों, यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 साल गुजरने के बाद भी तारीख को सेव करने का काम नहीं हुआ, जिस वजह से किसी भी तारीखी मवाद को सामने रखकर ईमान की इमारत नहीं बनाई जा सकती। अहले तशी इमामिया के अंदर इतनी सारी कंट्रोवर्शियल बातें क्यों हैं? क्या दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स भी इमाम महदी के मुतल्लिक इमामिया की तालीम से मुतफिक हैं? अगर मशहूर कौल के मुताबिक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने ज़ौजा अख्तियार नहीं की, तो तारीखी रवायत के इमाम की कोई औलाद नहीं थी में कोई कनेक्शन तो नहीं। दुनिया का कोई भी तारीखदान किसी बड़ी शख्सियत के वजूद की नफ़ी नहीं कर सकता, तो इमाम की नफ़ी कैसे कर सकता है? आखिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम को पैदाइश से गैब तक क्यों सिर्फ चंद लोगों ने देखा? क्या सच में इमाम महदी का ज़हूर हुआ ही नहीं? आपके सवाल जितने मुश्किल हैं, हमारे लिए उनके जवाब देना उतना ही अहम है और काबिल एहतराम है, और हम इनके जवाब यकीनन किसी और नशिस्त में आपको देंगे। नाज़रीन, अब हम आगे जानेंगे कि इस दीन इस्लाम के मुख्तलिफ फ़िरके जैसे कि इस्माइलिया, ज़ैदिया, अब्बासिया इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ क्या नज़रियात रखते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने इमाम महदी होने का दावा किया और उनका ताल्लुक़ अहले बैत से बहुत करीबी था, और इस तरह की बहुत तहक़ीक़ी मालूमात जो कि एक पार्ट में बयान नहीं हो सकती। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करें, ताकि इस वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 की अपडेट्स आपको मिल सकें और आने वाली वीडियोस से आप मुस्तफ़ीद हो सकें।